A very good morning, afternoon and evening, dear student. Up to the last lecture we have seen the need of database. Database is nothing but it is an organized collection of various forms, is also known as structured set of data that is accessible in manner through your computer. The various reasons for which we require a database, such as keeping your data safe. You know, a database play a very important role, and the need of database is to keeping the data safe. So it is only possible through the database. Then the various develop a variety of measures for data protection. It is only possible through the database. Then fix the standard for the data. It definitely fixes the standard for data. When we create any database, immediately the data can be changed into the particular format, that is database. So that database is a particular format, that is the standard. Stop duplication of data, definitely where there is a more than one entity redundantly came into the database, automatically the duplication can be avoided, making available data for use by one or more users. It is also possible through the databases only. Then providing the necessary and expected conclusions. This is very important need of the database, that is providing the necessary and expected conclusions through the database. Then update the data according to your convenience. Definitely when we want to increase some data into the database, we can. When we want to remove some data from the database, we can. So it is also data updation according to our convenience, users convenience actually. Then provide the security and privileges that you set to restrict the data. Also we can provide the security and restriction to the database that used to manage the data, that used to secure the data actually. So that is also provide security to the database. And last but not the least, that is provide the data integrity, that is the combination of number of multiples of data at a time at once, and that data take a form of the database. That is very important. So this is the need of database. Now we are moving towards the database users. Database users are one who really use and take the database. Definitely who want to take the database, that is the database users. There are 5 users of database. The first one is the application user, the second one is the sophisticated user, the third one is the specialized user, the fourth one is the stand-alone users, and last Navy users. So what is the application users? Application users are the developers. Application users are the developers who interact with the database by means of DML, that is data manipulation language queries. These DML queries are written in the application programs such as C, CPP, Java, Pascal, etc. These queries are converted into object code to communicate with the database. See, the first one is the application users. एप्लीकेशन यूज़र्स कौन है? एप्लीकेशन यूज़र्स वो यूज़र्स है डेटाबेस के जो डेटाबेस से एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर एक लैंग्वेज में कंप्यूटर से डील करते हैं, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसकी कुछ क्वेरीज रहती है, उस क्वेरीज के द्वारा उसको उससे डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरा और भी हम बता सकते हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस है या फिर ये DML क्वेरीज है, जो प्रोग्राम DML क्वेरीज के लिखे जाते हैं वो है सी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये CPP में। उससे क्या होता है, उससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज है C, CPP है, जावा है, पास्कल है,
ये पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिससे हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अब तक तो एकदम ठीक चल रहा था, अब ये डेटाबेस यूज़र्स में जब एप्लीकेशन यूज़र्स आए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दो बातों पे फोकस दो। एक तो यूज़र्स है, यानी जो डेटाबेस के यूज़र्स है वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। अभी डेटाबेस यूज़ करने के लिए उनको क्या चाहिए, तो बहुत सारे जो डेटाबेसेस है वो अलग अलग बेस पे बने हुए हैं। जैसे कि एक्सेल में जो बना है डेटाबेस, उससे हम क्या है सीधी तौर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस यूज़र होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कुछ स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके उसकी क्वेरीज फायर करके वो डेटाबेस यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन यूज़र्स। अब ये स्पेशल लैंग्वेज या स्पेशल ये क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो जैसे DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ व्हाट, द लैंग्वेज विच अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को समझती है वो लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज अगर कंप्यूटर को समझती है और यूज़र को समझती है तो इससे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हम जो डेटाबेस से है मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र थ्रू द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस सच एज द। तो फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कुछ लैंग्वेजेस है जो क्या है, जो है C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, या फिर जावा लैंग्वेज है, या फिर पास्कल लैंग्वेज। ये कुछ लैंग्वेजेस है जो क्या करती है, कंप्यूटर से क्या करती है, कंप्यूटर से यूज़र और कंप्यूटर में एक ब्रिज बनती है, और उससे हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन यूज़र। देन द सोफिस्टिकेटेड यूज़र, दे आर डेटाबेस डेवलपर्स who write SQL, that is structure query language, queries to select, insert, update the data. They do not use any application or programs to request the database. They directly interact with the database by means of query language like SQL, that is structure query language. These users will be scientist, engineers, analyst, etc. In short, we can say this category includes the designers and developers of the DBMS एंड SQL, दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। अभी समझ लो आप, बहुत ही ईजी शब्दों में मैं बताऊंगा कि सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स कौन है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वो यूज़र्स है जो डेटाबेस के डेवलपर्स हैं। तो ये डेटाबेस के डेवलपर्स कौन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने डेटाबेस बनाया, आपका डेटाबेस बनाया मैंने, तो वो डेटाबेस मैंने स्ट्रक्चर क्वेरी SQL में बनाया, तो मैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र हूँ। यानी इन शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, ये जो वी कैन से दिस कैटेगरी इंक्लूड द डिज़ाइनर और डेवलपर ऑफ DBMS। DBMS बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर SQL के और डेटाबेस के जो डेवलपर्स होते हैं वही सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि उनको मालूम है कि हमने SQL लैंग्वेज, SQL में जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में अगर कोई डेटाबेस बनाया है, जैसे कि मैं आपको ईजी एग्जांपल दूंगा कि मैंने एक्सेल में डेटाबेस बनाया, मैंने बनाया, मैंने डेटाबेस बनाया, मैं उसमें इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स हूँ। तो जो यूज़र्स होते हैं सोफिस्टिकेटेड, वो क्या होते हैं, वो खुद एनालिस्ट होते हैं, वो खुद इंजीनियर्स होते हैं, वो खुद साइंटिस्ट होते हैं, वो खुद डेवलपर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो डेटाबेस बनाते हैं और उनसे इंटरेक्शन करते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड यूज़र। These are also sophisticated users, but they write special database application programs. They are the developers who develop the programs to the requirement. अभी जो स्पेशलाइज्ड यूज़र है ये भी सोफिस्टिकेटेड यूज़र है, जो क्या करते हैं, जो डेवलप करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसके लिए। जो हम डेटाबेस बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड है। स्पेशलाइज्ड यूज़र क्या करते हैं, एक नया कोई डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिसमें डेटाबेस बनाते हैं और जिससे इंटरैक्ट करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड यूज़र है। मैं फिर से तीन यूज़र को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट है एप्लीकेशन यूज़र्स। एप्लीकेशन यूज़र्स क्या है, एक ऐसा यूज़र्स है जो किसी भी एप्लीकेशन, जैसे कि DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या फिर CPP, इससे बनी हुई जो कंप्यूटर इंटरेक्शन लैंग्वेज है, इससे क्या करता है, डेटाबेस से इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है।
सॉफिस्टिकेटेड यूज़र क्या है? सॉफिस्टिकेटेड यूज़र क्या है? जो खुद डेटाबेस बनाता है, डेवलप करता है और उससे इंटरेक्शन करता है। स्पेशलाइज्ड यूज़र क्या है? अभी सॉफिस्टिकेटेड में क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करेगा या फिर कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ करेगा डेटाबेस बनाने के लिए। अब स्पेशलाइज्ड यूज़र में क्या है कि वो क्या करता है कि खुद का एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बना देता है या फिर डेटाबेस एप्लीकेशन बनाता है और खुद ही डेटाबेस को सेट करता है, दैट इज स्पेशलाइज्ड यूज़र। स्टैंड अलोन यूज़र क्या है? दिस यूज़र विल हैव टू स्टैंड अलोन डेटाबेस फॉर देयर पर्सनल यूज। दिस काइंड ऑफ डेटाबेस विल हैव टू रेडीमेड डेटाबेस पैकेजेस विच विल हैव मेनूज एंड ग्राफिकल इंटरफेस। अभी हमारा यूनिवर्सिटी ने जो डेटाबेस भेजा है कॉलेज वालों को, वो डेटाबेस क्या है? वो है रेडीमेड, और इसको कौन यूज़ करे? स्टैंड अलोन यूज़र्स। हमारे कॉलेज के जो भी लोग उसको यूज़ करें, तो दोज हु यूजिंग द रेडीमेड डेटाबेसेस दे कॉल्ड स्टैंड अलोन यूज़र्स। और लास्ट में है नेवी यूज़र्स। दिस यूज़र्स आर यूज़र्स हु यूज द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जैसे कि स्पेशलाइज में क्या हुआ था, उन्होंने खुद का एप्लीकेशन बना के डेटाबेस से इंटरेक्शन किया था। नेवी यूजर्स में क्या होता है, जो ऑलरेडी कोई बना हुआ एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन से डेटाबेस को इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको हम नेवी यूजर्स बोलेंगे। जैसे कि लाइब्रेरी सिस्टम में है या फिर टिकट बुकिंग सिस्टम में है। हमारे सिस्टम, हम जब कंप्यूटर खोलेंगे, नेट लगाएंगे और टिकट बुकिंग सिस्टम में ऑलरेडी डेटाबेस है, उससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो है नेवी यूज़र। एटीएम है, हम ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, हम उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, तो डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस से खेल रहे हैं या फिर इंटरेक्शन कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द नेवी यूज़र, यानी लास्ट यूज़र है वो। स्टैंड अलोन यूज़र और नेवी यूज़र क्या है? लास्ट यूज़र है। वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो है स्टैंड अलोन यूज़र्स या फिर नेवी यूज़र्स। स्पेशलाइज यूज़र क्या है? डेटाबेस के लिए स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोग्राम्स बनाता है, डेवलप करता है, वो स्पेशलाइज यूज़र। सॉफिस्टिकेटेड यूज़र क्या है? जो खुद एसक्यूएल या फिर जो डेटाबेस बनाने के लिए जो भी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन यूज़ करता है, उससे वो डेटाबेस स्ट्रक्चर करता है, बनाता है और उसको यूज़ करता है, वो है सॉफिस्टिकेटेड। और एप्लीकेशन यूज़र्स क्या है? तो ऐसा यूज़र है जो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर्स लैंग्वेज को यूज़ करके डेटाबेस से इंटर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करता है, वो है डेटाबेस यूज़र। अभी आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस होंगे डेटाबेस यूज़र्स पे। आने वाले लेक्चर में आप मुझसे इस पे डिस्कशन करना है। आपको बहुत सारे अभी कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, क्वेश्चन रेज होंगे तुम्हारे माइंड में, तो मुझसे आपको डिस्कशन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में हम देखेंगे डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस। थैंक यू सो मच।